Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Devendra Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 8th English Literature Chapter 11 The Pipe Lighter. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को द पाइप लाइटर नामक स्टोरी को पढ़ाने जा रहा हूँ. सो दैट लेट अस स्टार्ट टू रीड दिस स्टोरी. The pipe lighters. My dear student, you know that the meaning of the pipe lighters. रीड द डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड अ सन. इसमें जो है एक फादर और सन के बीच डायलॉग है, कन्वर्सेशन है. सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज डिस्कस बिटवीन दीज टू पर्सनालिटी. फादर कहता है, सेड फादर, सन डिड यू गेट योर रिपोर्ट कार्ड. फादर, son, did you get your report card? Son, yes dad, I have got. Father कहते हैं, son, did you get your report card? क्या आपने अपने रिपोर्ट कार्ड को पाया? son कहता है, yes dad, I have got it, I received it. son answered his father question. He received the card. Father, you are got it. When? Why did not you show it to me? The father इंक्वायरी अबाउट हिज सन्स कार्ड. सन कहता है, यस्टरडे. सन कहता है, यस्टरडे, कल. आई फॉरगॉट टू शो इट टू यू. फादर, आई गॉट इट यस्टरडे बट आई फॉरगॉट टू शो इट टू यू. मैंने इसको प्राप्त किया था कल, लेकिन मैं इसे आपको दिखाना भूल गया. फादर कहते, यू फॉरगॉट, आप भूल गए. सन, वेल, I was going to, but I thought, does this dialogue ring a bell at least in some of you? Well, it's a universal problem faced by all those who fare badly in their exams. Does this dialogue ring a bell? क्या इस डायलॉग के द्वारा this dialogue ring a bell at least in some of you? Well, it's a universal problem faced by all those who fare badly in their exams. How do they deal with it? Let's read the play and find out how Ernest's uncle solved the problem for him. But was it the right things to do? Let's read the play. इस प्ले के माध्यम से हम जानेंगे how Ernest, कैसे अर्नेस्ट जो है, अर्नेस्ट के जो अंकल हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर हिम, उनके लिए सारी समस्याओं को सॉल्व करते हैं. बट वाज इट द राइट थिंग्स टू डू, क्या यह सही चीज़ थी? देखिए, देयर आर सम कैरेक्टर्स इन दिस प्ले. अर्नेस्ट रोलैंड स्मिथ, आ स्कूल बॉय ऑफ 14 साल का एक लड़का, स्कूल बॉय, जिसका नाम है अर्नेस्ट रोलैंड स्मिथ. सेकेंड कैरेक्टर है मिस्टर रोलैंड स्मिथ, हिज फादर, अ सेल्फ इम्पॉर्टेंट बिजनेसमैन. मिस्टर रोलैंड स्मिथ उसके पिता हैं अर्नेस्ट के, जो कि एक खुद के बहुत महत्वपूर्ण बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं. इनके अंकल का नाम है, द थर्ड कैरेक्टर इज अंकल टॉम. मैरी, अ सर्वेंट, अ बॉय आल्सो नेम्ड स्मिथ. एक सर्वेंट है जिसका नाम मैरी है, एंड आल्सो अ बॉय आल्सो नेम्ड स्मिथ, एक लड़का है जिसका नाम स्मिथ है. द सिटिंग रूम ऑफ द रोलैंड स्मिथ्स. इट इज जस्ट बिफोर 7 PM, a few days before Christmas. Ernest is bending down over the radio, turning controls, and the set is making a terrible noise as his father enters the sitting room of Roland Smith. This room belongs to Mr. Reynald Smith. That time it is the time of 7 PM, a few days before Christmas. Ernest is bending down over the radio. Ernest जो है रेडियो के ऊपर झुकता है, रेडियो टर्निंग कंट्रोल्स, and the set is making a terrible noise as his father enters. जैसे कि उसके पिता प्रवेश करते तभी एक भयानक आवाज सुनाई पड़ती है. फादर, फॉर गुडनेस सेक, लीव दैट थिंग्स अलोन एंड लेट्स हैव सम पीस एंड क्वाइट. एनी
लेटस फॉर मी, फादर कहते हैं कि फॉर गुडनेस सेक लीव दैट थिंग्स एलोन एंड लेट्स हैव सम पीस एंड क्वाइट। तथा गुडनेस, फॉर गुडनेस सेक, अच्छे के लिए तुम क्या करो, इन सब चीज़ों को अकेला छोड़ दो, क्योंकि लेट्स हैव सम पीस एंड क्वाइट, हमें कुछ पीस, पीस मीन्स शांति, एंड क्वाइट, वी विल लिव इन दिस good condition, we do not hear any kind of noise. Any letters for me? Ernest, any letters for me? क्या मेरे लिए कोई पत्र है? Ernest, I don't think so, Dad, but the evening post hasn't come in. Ernest कहता I don't think so, Dad, but the evening post hasn't come in yet. Father, consulting his watch, late again, it is just the same as the rest of the public services. Nothing seems to be working properly. Mary tells me the telephone is out of the order again. Father, consulting his watch. Consulting his watch means he saw his watch. Later again, it's just the same as the rest of the public service. Nothing seems to be working properly. कुछ चीज़ अच्छे से नहीं दिख रहा कार्य करते हुए. Mary tells me the telephone is out of order again. मैरी ने मुझको बताया था कि टेलीफोन क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया, खराब हो गया. अर्नेस्ट, इट्स वेदर, खरा इट्स वेदर आई एक्सपेक्ट, इट्स द वेदर आई एक्सपेक्ट. फादर, व्हाट डू यू मीन? व्हाट इज द वेदर? गो टू डू विथ इट. इट्स वेदर आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ. इट्स द वेदर, इट इज़ द रीजन ऑफ वेदर द रेडियो does not do properly. Father, what do you mean? What is the weather go to do with it? And I thought perhaps the so, we don't think it's probably due to carelessness or laziness, and goodness no, I get enough of that at the office. Nobody seems to understand the meaning of the word work nowadays, which reminds me, should you be doing your homework? फादर कहते हैं वेल डोंट थिंक, अच्छा तो वेल डोंट थिंक, वेल अच्छा डोंट थिंक मीन्स इसके बारे में मत सोचिए. इट इज़ प्रोबेबली ड्यू टू केयरलेसनेस, ये जो हुआ है ये संभवतः ड्यू टू केयरलेसनेस, लापरवाही के कारण हुआ, और लेजीनेस, आलस्यपन के कारण, एंड गुडनेस नोज आई गेट इनफ ऑफ दैट एट ऑफिस. नोबडी सीम्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्क नाउअडेज. इन दिनों लोग जो है वर्क के महत्व को नहीं समझ पाते. नाउअडेज द पीपल डू नॉट कंसिडर द रियल मीनिंग अबाउट वर्क. विच रिमाइंड्स मी, विच रिकॉल्स मी, shouldn't you be doing your homework? Shouldn't you be doing your homework? It's appeared that you have not done your homework. Ernest, we have broken up, Dad. Ernest कहता we have broken, Dad. Broken means we are disturbed now, my dad. We have broken up, Dad. Fathers, what already? Ernest, it's only 3 days to Christmas. Father, I should have thought Christmas even would have been so soon enough. I shall be at the office till then. Father कहते I should have thought Christmas even would have been soon enough. I shall be at the office till then. Ernest, yes, but business is different. Ernest कहता है Father, but बिजनेस इज डिफरेंट, लेकिन जो बिजनेस है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग है. फादर, सो इट सीम्स, सो इट अपीयर्स दैट यू विल डिस्कवर दैट फॉर योर सेल्फ समडे लाइफ इज नॉट ऑल प्लेजर व्हेन यू हैव लेफ्ट स्कूल. फादर सेड दैट, सो इट्स अपीयर दैट यू विल डिस्कवर दैट फॉर योर सेल्फ समडे लाइफ इज नॉट ऑल प्लेजर व्हेन यू हैव लेफ्ट स्कूल. लाइफ इज नॉट ऑल प्लेजर, जीवन जो है ए इज नॉट ऑल प्लेजर. प्लेजर मीन्स कंफर्टेबल. व्हेन यू हैव लेफ्ट स्कूल, व्हेन यू हैव लेफ्ट स्कूल, जब आप स्कूल को छोड़ देते हैं. ऐसा क्यों करें? क्योंकि स्कूल छोड़ने के बाद क्या होता है,
बच्चों को होमवर्क करना पड़ता है, इसलिए फादर कहते हैं सो इट सीम्स, सो इट्स अपीयर, यू विल डिस्कवर दैट फॉर योर सेल्फ समडे, लाइफ इज नॉट ऑल प्लेजर्स व्हेन यू हैव लेफ्ट स्कूल. So that is the description display. So that thank you and have a nice day.